We are just waiting for our guests to arrive. It gives me great pleasure to tell you that this press conference, all our press conferences indeed, are being live streamed on the PIB India YouTube channel also. Just wait for 2 minutes, and all my dignitaries on the dais will be here with us. And the Fauji's are in the first row. This is a new serial, Fauji 2. So we thought that we'll get the cast also to add a little color and glamour to our press conference. Welcome to all of you.
Namaskar. It is my pleasure to introduce the chairperson of Prasar Bharati, Shri Navneet Sehgal ji, CEO Prasar Bharati, Shri Gaurav Trivedi ji, Shiv Sagar ji, who's making the new Ramayan, which is going on this thing, and the other two people joining us. Gauhar Khan needs no introduction, but I'll still, and Vicky Jain. So this is our PC, and to the dignitaries on the dais, I'd like to inform that our PC is being live streamed on the on the PIB India YouTube channel, and in alignment with our efforts to make IFI accessible, we also have a sign language interpreter who is also interpreting the PC so that everybody can be included in our initiative. So, friends from the media, our today's press conference is about a very important initiative of Prasar Bharati, the launch of the OTT platform Waves. This was launched on the IFI stage yesterday in the glittering opening ceremony, and we are delighted to have the chairperson and the CEO and some of the cast and crew here with us to talk about this new initiative and the kind of shows which are going on to be available on this OTT platform for us here in India and indeed globally. May I now request the chairperson to say a few words. Good afternoon, everybody. As you're aware, as the host has just informed, and you may also be aware, yesterday the Chief Minister Goa we launched our new OTT platform, that's Waves. The need for another OTT platform was being felt, and as a national broadcaster, we found it was our duty to bring a platform where we could bring clean, healthy family entertainment on a platform which is accessible to all. Simultaneously, the endeavor was not only to bring a clean and a healthy family entertainment on a digital platform which is accessible to everybody, also bring news platforms, like we have news channels on that OTT platform, almost more than 40, all the prominent news channels on that digital platform. Something for kids, games platforms on that ROTT. Something for youth, current affairs programs. Something for all sections of the society. And above all our archives are there. The programs, the serials that we have grown up with, we have seen them, while during our childhood, our youth. They're available. And people used to search for those programs, and we have brought all those programs in our archive sections on the Waves OTT platform. We have tied up with synchronized our platform with Eros, Lionsgate. These are all different apps where more than 10,000 films are available. On now, you can have so much to see, so much to watch. Also, as a national broadcaster, we have brought all the major regional language programs, our culture, our cultural heritage, our history on a digital platform for the first time. So I would request through you to all our audiences, everybody, please download that app. It's very easy. It's free for everybody except some of the programs which are premium programs. Otherwise, it's free of cost. Everybody should download and have a look at this program. I would request my CEO Gaurav to explain it a little more further. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. I think just three things that I would say at this moment. The chairman has already spoken at length about the app. The first is why another OTT app? That's a question that several people have asked me, and I think I'll take the opportunity to answer that. Over the years, as we moved from radio to TV, and then multiple improvements in the broadcast technology, we started with one channel, then there was a DD Metro and other things, and then private channels and all.
So gradually, as the audiences moved to a newer platform, the necessity for the public service broadcaster to be present on those platforms is there, because our role is to take information to the audiences, whether it is news, whether it is entertainment, whether it is education, all kind of content. So we have to be present on all the platforms where the audiences are. And today, if a large and growing number of audiences are going to the digital platform to consume content, then of course it is incumbent upon us to also be present on the digital platforms so that we can keep reaching the audiences. The second part is that as part of as our public service broadcasting role mandates, that we have to make information and content available to people across the length and breadth of our vast country, the large number of languages, cultures, dialects. While we have made this effort to start with programming in over 10 languages at this point of time, but our endeavor would be that over the next several months or couple of years, we will try to cover all the major Indian languages and some of the prominent dialects as well, so that people from all parts of the country can access this content. And of course, there's a large number of people who've moved away from their roots, but they still want to remain connected through programming in those languages. So, being a digital platform, it will be available to everybody anywhere on earth, and therefore, people would find programming which is more relevant for them in an easy to search format. The third part, which again the chairman mentioned, is in terms of the large part of the programming being free. And that is simply again because of our public service role, that we would not want to ever keep a very high entry barrier in terms of high subscription fees, so that everybody can access this platform and obtain whatever news or entertainment or educational content that they would want to see. So again, I reiterate that Waves is a medium for all of us, for all Indians, and through the friends from the media present here, I would want this message to be spread far and wide to download and use Waves. Thank you very much. We'll take questions at the end, or is there any clarification anybody wants to know about this OTT? We carry on. Anybody else from the Yeah, Uh, now you can introduce the. Shiv Sagar ji, will you like to say a few words about your serial? Yes. धन्यवाद Navneet ji, Gaurav ji, Kanchan ji for giving us this opportunity to make Ramayan once again. And on Doordarshan, मेरे दादाजी रामनंद सागर जी ने 1987 में जो धारावाहिक बनाया था रामायण, that has been seen by almost 1 billion people all over the world, played in almost 65 countries. So, और 36 years के बाद भी वो अभी भी कहाँ नहीं कहाँ टेलीकास्ट होता ही रहता है. So that has वो अमर हो गया है. And उनका नाम ही था राम आनंद सागर. तो उन्होंने जो राम जी के भक्ति के आनंद के सागर में सबको डुबाया है, वो मुझे लगता है जो उन्होंने एक अपने भारतीय संस्कृति के बारे के लिए भी जो उन्होंने किया है कि बिकॉज रामायण देखने के बाद लोग एक्चुअली अपने माँ बाप के पैर छूने लगे. एंड लाइक नवनीत जी सेड that want to do very positive content, you know, which the whole family can watch together. Because these days I feel on the OTT negativity too much of, because negativity sells, it's easy to sell. So people do a lot of negative content, which I think is a great idea for the Waves OTT strategy part, that, you know, you can have some positive content coming out from India. And India is a land of itihas, a land of traditions, parampara. We have such a old, ancient culture, maybe the oldest in the world. तो ये अपना इतिहास है, because इसका गलत शब्द है mythology, because mythology मतलब myth, कि ये हुआ नहीं है. But I believe that these things have taken place. There have enough archaeological evidence that, you know, these things happened. So I feel this is our इतिहास. एंड हम लोग ने एक ग्रैंडफादर को एक ट्रिब्यूट पे करके हम लोग ने एआई में फर्स्ट एपिसोड में एक वी यूज्ड टू कॉल हिम पापा जी.
तो उनका हम लोग ने एक AI में बनाया है पूरा, एंड ही एक्चुअली कम्स लाइक हाउ ही यूज्ड टू कम इन द बिगनिंग ऑफ द एपिसोड एंड टॉक कि ये एपिसोड में आपको ये देखने मिलेगा वो, तो हम लोग जस्ट टू पे अ ट्रिब्यूट टू हिम we did a AI rendition, we did his voice also, and he's actually spoken about Kakbushundi Ramayan. So Kakbushundi was एक ऋषि थे जो कौवे के रूप में थे, और राम लल्ला के साथ उन्होंने 5 साल के जब थे राम लल्ला, तो उन्होंने 5 साल की उम्र तक राम लल्ला के साथ अयोध्या में बहुत सारी लीलाएं की थी. सो उन्होंने 14 बार रामायण देखी थी, एंड he's been kept as a सूत्रधार for our show, and हम लोग अनसुनी कहानियां में जा रहे हैं because there are a lot of stories about Ramayan. So we have researched more than 350 Ramayans all over the world, not only in India. And उसमें से जो हमें बेस्ट स्टोरीज मिली हैं, आनंद रामायण, आध्यात्मिक रामायण, of course Tulsi Ramayan, Valmiki Ramayan, all these. So we have taken the best stories and we have tried to present in a very different way. Also Ram Lalla का किसी ने किया नहीं है. How was Ram's childhood in Ayodhya at that time? तो that हम लोग ने बहुत विस्तार में काकभूषुंडी के साथ उनकी बचपन की लीलाएं बताई हैं, almost 20-30 episodes. And then we have also shown, because when Ram was born, Ravan was supposedly around 10,000 years old already. तो उन्होंने त्रिलोक विजय वगैरह वो सारी चीजें कर ली थी. So what are the motivations of Ravan? Like, what does he want? Why can't he capture Ayodhya? So we have treated a bit like a historical, एक reality के तरीके से, वो political उस time क्या scenario था? Why couldn't he attack Ayodhya or Mithila? So a lot of beautiful things have been covered, and we are grateful and honored to have given this opportunity to come on Doordarshan OTT. And thank you, sir. Thank you for the thing. And so please watch Kakbushundi Ramayan. Jai Shri Ram. Something about the other serials also. Yes, ये आपको लग रहा होगा, why there is a mix of, like we are telling about OTT plus there are special 2 programs. The idea is to tell you that Doordarshan is changing. I think it has changed. That is and that is the idea. We started with, the wave is just recent, but you will find you will find many such entertaining programs on all the different platforms. Today is one of the few of them. As an example, we are presenting it to you. Thank you. Taking that opportunity, Gauhar, would you like to say a few words? First of all, it's an honor sitting here with the dignitaries. I mean, it feels like a blessing. So thank you for having me here. And another blessing in all our lives right now is the fact that the legacy of Shah Rukh Khan, Fauji, has a new life now. Fauji 2 has been released on DD National Monday to Thursday, 9 p.m. And it's a great, opportunity for us to be getting showcased on DD National and Waves. The stories of Fauji 2 are very relatable. It's the stories of, the lives of people who represent and protect India. जो कहानियां हमें पता भी नहीं चलती हैं, जो हमारे, borders पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में और उनकी फैमिलीज में क्या होता है, उनके साथ क्या दिक्कतें आती है, क्या अच्छाइयाँ होती है, वो सारे खुशी, गम, struggles and actual, lives of these people are being showcased on our new show Fauji 2. Of course, it's been headed by a genius, Mr. Sandeep Singh. हमारे बहुत ही काबिल डायरेक्टर्स हैं जो कि इतना बढ़िया हमसे काम करा रहे हैं. हमारे सारे लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं जो फौजियों के किरदार प्ले कर रहे हैं. मैं उनकी कमांडो प्ले कर रही हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल सिमरजीत कौर. बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है जब आप वर्दी पहनते हैं, और आर्मी की वर्दी तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आती है. तो हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छा काम करें, ऑडियंसेस को एंटरटेन करें, आपके प्लेटफॉर्म को, आपके चैनल को, जो हमारे देश का पहला चैनल था डीडी नेशनल, जिन्हें
जिस चैनल ने हमें एंटरटेनमेंट क्या होता है वो बताया, वो सिखाया, वो हम उसी के माध्यम से जानने लगे. ऑफ कोर्स आज हम इतने स्तर पे हैं इंडिया में कि we're the biggest contributors of entertainment across the world. So if we are here representing 4G2 for DD National and Waves, we're very happy and grateful for this opportunity, and I hope the audiences loves it. Please don't forget Monday to Thursday 9 p.m. on DD National. Thank you. मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जब मेरे इंडस्ट्री को पता चला कि मैं फौजी 2 कर रहा हूँ और मीडिया को तो एक मैसेजेस आने शुरू हो गए कि यार दूरदर्शन पे क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा तो कहाँ करना चाहिए फौजी 2, आप बताइए. तो एक बात अभी सागर साहब ने बहुत अच्छी बोली कि हर जगह जब मुझे पता लगा कि दूरदर्शन एक नए तरीके से शो चाह रहा है और वेव्स भी लॉन्च हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा इससे गर्व की बात क्या होगी कि एक OTT प्लेटफॉर्म इकलौता पूरे विश्व में ऐसा बन रहा है जिसमें मैं अपने मम्मी बहन दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, किसी के भी साथ बैठकर वो OTT प्लेटफॉर्म देख पाऊंगा, अपना शो प्राउडली देख पाऊंगा. और फौजी 2, वागले की दुनिया, विक्रम बेताल, महाभारत, रामायण, सर्कस, हम लोग, ये सारों के साथ हमारी फौजी 2 भी दिखेगी. और ये चैनल से बढ़ के कहते हैं कि सिनेमा घर घर पहुंचता है. मैं कहता हूं कि दूरदर्शन के अलावा कोई घर नहीं पहुंचता. तो और इस मेरा बस चले तो मैं तो इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज लोग हैं जो अपने आप को सही में निर्माता मानते हैं, हम तो उनके अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो चोपड़ाज हैं और जौहर्स हैं और तोरानीज हैं, ये सब लोगों को दूरदर्शन के लिए शो ट्रिब्यूट करना चाहिए. और तब जाके साथ में आके पूरी इंडस्ट्री को, हर लैंग्वेज के इंडस्ट्री को, मैं तो भारत की जो इंडस्ट्री चाहे वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, जो भी, सब लोगों को साथ आके वेव्स और दूरदर्शन को ऐसा सपोर्ट, ऐसा कंटेंट देना चाहिए कि हमारे देश का चैनल सबसे ज्यादा बढ़ के विश्व में ऊंचाई तक पहुंचे और सब लोग उसकी वजह से हम सब जाने जाते हैं. आज हमें रामायण, मैंने कभी पढ़ी नहीं, मैंने महाभारत देखी नहीं, पर जो मुझे दिखाया गया वही मेरे लिए रामायण है. तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं नवनीत सहगल जी का, हमारे चेयरमैन, और गौरव द्विवेदी सर का जो हमारे CEO हैं, और कंचन मैम, जो जिन्होंने फौजी 2 और हम जैसे नए लड़कों को मौका दिया कि हम आपके साथ कुछ छोटा सा अपना टैलेंट पेश कर पाए. उसके लिए रियली रियली ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सर. आप विकी जैन बोलना चाहती हैं ना, मैं बोल देता हूँ. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ से शुरू होके सबने कवर कर ही ली. बस मैं जैसे एक ही चीज बस मैं बोलना चाहता हूँ. दूरदर्शन की सबसे अच्छी बात यही है कि वो खुद भी उन ऑडियंस को कवर करता है जहां तक शायद बहुत सारी केबल की और मॉडर्न फैसिलिटी सुविधाएं शायद नहीं पहुंच पाती हैं. तो एक उस तबके और उस दर्जे को भी वो सारी चीजों को कवर कर लेता है. वहां तक उस क्वालिटी एंटरटेनमेंट को पहुंचाने का काम जो वेव सिनेमा और दूरदर्शन अब करने वाला है. जो शायद लोग ऐसा बोलते थे कि उस तरह के उतने अच्छे शोज शायद वहां पे नहीं आ रहे हैं या लोग वहां तक नहीं देख रहे हैं. आई एम श्योर हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब कोविड का टाइम आया था, दो वी हैड सो मच ऑफ कंटेंट टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स एंड अदर OTT प्लेटफॉर्म्स, बट स्टिल आई एम श्योर एवरीबडी विद देयर फैमिलीज हैज वॉच्ड रामायण एंड महाभारत अगेन. सो ये जितने भी शोज हैं, इनकी वो गरिमा और इनकी जो रिमेम्बरेंस है वो कभी 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 खत्म नहीं हो सकती है. और आई एम सो हैप्पी दैट रामायण इज येट कमिंग अप अगेन, फौजी इज कमिंग अप अगेन. और दूरदर्शन के जितने भी शोज थे वो अपने आप में शायद ब्रांड्स हैं, यू नो. बाकी कितने भी शोज बने होंगे लेकिन कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो एक नहीं सारे शोज आप उठा के बता दो. हम किसी से जनरल चर्चा में भी ये बोल देते हैं ना कि हम शायद इन शोज को रीमेक करने का सोच रहे हैं, तो मतलब एक इंसान नहीं है जो ऐसा बोलता है कि अरे ये क्या कर रहे हो. सब लोग बोलते हैं रियली, एक एक्साइटमेंट आती है. सो यस,
ये बहुत अच्छी शुरुआत है एंड आई एम श्योर वेव्स को ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और इसी तरह से ग्रो होता रहेगा एंड हम सबको मिलके इसे बढ़ाना है. लेट्स डू इट टुगेदर. थैंक यू सो मच. Now I'll open the floor for questions. Ji Suresh ji. ये प्रसार भारती और दूरदर्शन नए रूप में सामने आ रहा है बदले हुए समय में. ये एक स्वागत योग्य बात है. लेकिन जितनी चीज़ें बताई गई कि क्या क्या नया होने जा रहा है OTT और अन्य क्षेत्रों में, न्यूज़ के क्षेत्र में वगैरह, लेकिन एक चीज़ की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा और डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की हैसियत से भी बताना चाहूँगा कि लगभग ये जो अपना चैनल है प्रसार भारती, उसको डॉक्यूमेंट्री का एक चैनल बनाया जाना चाहिए. लगभग हमारे पास एसोसिएशन में 4000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है जिनको कहीं दिखाया नहीं गया. लोग बनाते हैं और डब्बों में बंद हो जाता है, कोई इसको देख नहीं पाता, उसका कोई मंच नहीं है. और डॉक्यूमेंट्री के मंच दुनिया में जहाँ जहाँ हुए हैं जिसमें बहुत सफल हुए हैं. तो हम लोगों को क्या ऐसा नहीं करना चाहिए प्रसार भारती को कि डॉक्यूमेंट्री का एक छोटा ही सही एक चैनल बनाया जाए जिससे कि डॉक्यूमेंट्री मेकर्स को एक मंच मिल सके. अच्छा है, अच्छा आइडिया है. विल थिंक अबाउट इट. आपके साथ बैठ के बात करेंगे. Yeah, please. मैं रामानंद सागर जी से मिली भी हूँ और आपके घर भी गई हूँ. मोती सागर जी में बहुत अच्छी तरह जानते हैं. मैं लखनऊ से जर्नलिस्ट हूँ, नम्रता शुक्ला. मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी रामायण के बाद और भी आई रामायण, वो इतना पॉपुलर आपके हिसाब से क्यों नहीं हो पाई? और दूसरा, जो आप बना रहे हैं रामायण, उसमें क्या स्टार कास्ट है? क्या वो दौर हम फिर से लौटा पाएंगे जैसे रामानंद सागर साहब का शुरुआत होती थी? हम लोग अगर कहीं बाथरूम में भी हैं तो दौड़ के रामायण आ रही, चलो बैठो. तो वो दौर आ पाएगा जो एक जमाना बीत गया आपके हिसाब से? तो हम लोग ने एक रामायण बनाई थी 2008 में. एनडीटीवी इमेजिन चैनल था, उसमें गुरमीत और देवीना थे. वो रामायण भी अच्छी चली थी, बहुत अच्छी रेटिंग आई थी. 300-400 एपिसोड, शायद ज्यादा ही किया था उसने. और दूसरा, आजकल मुझे जो लगता है, जो मिथोलॉजिकल शोज बनाते हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाह रहा हूँ, बट वो कुछ नया करने के इसमें ना इतना कुछ नया कर बैठते हैं कि ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती एंड बहुत सारी लिबर्टीज लेते हैं. बिकॉज ऐसे शोज में ना थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं. बिकॉज जैसे ग्रीक माइथोलॉजी है, वो ग्रीस में कोई जियस को पूजा नहीं कर रहा है आजकल, बट अपने जो हनुमान जी है उनकी रोज पूजा होती है. तो ये जो अपने कैरेक्टर्स हैं, ये साक्षात आज भी पूजनीय है. और हम लोग वो सिक्स पैक ऐप दिखा के, वो उनको बहुत सुंदर दिखा के, एंड ये वो ग्रीक टाइप कॉस्ट्यूम्स बना के, जो मुझे जो लगता है आजकल जो करते हैं. दूसरा, टेक्स्ट्स को वो रिसर्च नहीं करते अच्छी तरह से एंड गहराई में नहीं जाते. वो शायद खुद जानते नहीं है या जो भी उनको गाइड करता है. तो उस वजह से मुझे लगता है जो पूरा जॉनर है माइथोलॉजी का, वो एक किस्म से खराब हो रहा है. बिकॉज बहुत शायद यंगर लोग लाइक करते हैं, उनके पास शायद बैगेज कम है, बट जो ओल्डर जनरेशन है वो रिलेट नहीं कर पा रही है जैसे जो शोज आजकल बना रहे हैं. तो हमारा एक सागर का एक स्टाइल है, भक्ति रस होना चाहिए है और इमोशंस होना चाहिए. जैसे रामायण में बिना इमोशंस, बिना गाने, चौपाई, बिकॉज वो गानों से ही इमोशंस आता है. अभी आप पापा जी की रामायण अगर रविंद्र जैन के म्यूजिक के बगैर, आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी. तो बिकॉज पापा जी की रामायण आप जितनी बार भी देखो आपको रोना आ जाएगा. दादाजी की एक स्पेशलिटी थी, वो लोगों को रुलाने में बहुत अच्छे थे. तो मुझे लगता है आजकल ना वो इमोशन नहीं है, सोल नहीं है. पैकेजिंग बहुत अच्छी है, स्लिक है,
प्रोडक्शन वैल्यूज अच्छे हैं, सेट्स अच्छे हैं, कॉस्ट्यूम अच्छे, सब सुंदर दिख रहे हैं, पर आत्मा मिसिंग है। तो वो मुझे एक लगता है आजकल। और दूसरा आपका क्या क्वेश्चन था? मैं कह रही हूँ कि आपके रामायण में ऐसा क्या है जो अभी आप लाएंगे? हाँ। क्योंकि आपके दादाजी ने तो एक बहुत अच्छा एक सूत्रधार हाँ जी। पेश किया था कि मतलब पहले आते थे वो पर्दे पे, फिर कहते थे कुछ, फिर एकदम से शुरू होती थी। ऐसा क्या आप लाएंगे कि जो एकदम लोग बन के एकदम आ जाएं और वे इसको पसंद देखिए क्या करें? है, पापा जी की जो रामायण थी ना, वो हम लोग ऑनेस्टली बना नहीं सकते हैं। वो बन गई, वो राम जी की कृपा से बन गई। एंड बिकॉज मैं मानता हूं कि इतना कोई सीरियल को फेमस होना कि मतलब ट्रेन्स रुक जाती थी, जम्मू में लाइट हाउस को तोड़ दिया गया बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन उस टाइम पे, रामायण के टाइम पे बंद हो गई थी, तो मैरिजेस रुक जाती थी, तो इट वाज अ डिफरेंट फिनोमेना। एंड उस टाइम शायद एक ही टेलीविजन, मतलब एक दूरदर्शन ही था उस समय। टेलीविजन उस टाइम आ रहा था। और रामानंद सागर जी भी खुद एक फिल्म मेकर थे। उन्होंने करीबन 50 फिल्में प्रोड्यूस, राइट, डायरेक्ट की थी। उनकी पहली फिल्म उन्होंने जो लिखी थी बरसात, राज कपूर की जो पहली हिट फिल्म थी। उससे पहले राज कपूर इतने सक्सेसफुल एक्टर नहीं थे, तो पृथ्वीराज कपूर ने पापा जी को बुलाया और बोला कि तू अच्छा राइटर है, तू एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख जिसमें सारे 9 रस हैं। एंड वो आपकी बरसात थी। तो ही हैड उन्होंने रामायण बनाई, वो 70 साल के थे। उससे पहले उन्होंने 50 करीबन फिल्मों से एसोसिएट रहे। तो वो आप सोचिए उनका एक्सपीरियंस एंड उनका सुपर कंप्यूटर क्या स्पीड पे काम कर रहा होगा। तो हम लोग वहां तक शायद नहीं, आई डोंट नो वो कहां तक पहुंच पाएंगे, बट हम लोग ने जो अपनी तो इसलिए हम लोग ने थोड़ा पापा जी वाला एक फील रखा है, एक आत्मा वो भक्ति वाली रखी है। बहुत सारे गाने हैं अपनी रामायण में, चौपाइयां है, बिकॉज वो म्यूजिक, बट हम लोग ने जो ग्राफिक्स एंड जो प्रोडक्शन वैल्यूज, जो सेट्स, वो सब आज के हैं। बिकॉज वो बहुत लिमिटेशंस में बनी थी उस टाइम, बजट्स वगैरह काफी प्रॉब्लम हुआ करते थे, एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं थी इतनी, और ब्लू स्क्रीन पहली बार यूज किया था। तो आजकल तो बहुत सारा डिजिटल हो गया। वो उसमें VHS में शूट करते थे, वो यूमैटिक टेप आती थी, तो वो अलग जमाना था। तो आई थिंक उस हिसाब से हम लोग ने एक प्रयास किया है। अभी लोग कितना पसंद करेंगे वो लोगों पे है। सहगल साहब आपसे एक मिनट शुक्ला जी, हाँ बोलिए बताइए। सहगल साहब आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे वेव शुरू होगा तो क्या जो लोग चले गए हैं, जैसे उड़ान की कविता चौधरी चली गई, सागर साहब नहीं रहे, तो उसका कुछ एक ट्रिब्यूट दिखाएंगे शुरुआत में, कुछ ऐसा रखेंगे कि हमने इतने अच्छे सीरियल्स दिए और वो लोग जो लोग चले गए हैं उनके लिए हम एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिब्यूट दे रहे हैं। प्रोग्राम जब चलता है, वो अभी तो अपलोड हुआ है। अच्छा सुझाव है, इस पे काम कर। हाँ अंजलि, ये वैसे जो आप इन्होंने आपको बताया नहीं, ये रामानंद सागर जी का AI का कुछ मॉडल ला रहे हैं, वो कुछ बोलेंगे, आप भी इस वाले में भी बोलेंगे। पीछे एक प्रश्न है, अंजलि जी। नमस्कार सहगल साहब। सर आपने ये जो OTT जो प्लेटफॉर्म शुरू किया उसके लिए बहुत बहुत मुबारक है आपको। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपके पास इतना कंटेंट था, जितना दूरदर्शन के पास है या प्रसार भारती के पास है, उतना किसी के पास भी नहीं है, तो क्या वो पुराना जो पहले वाला दौर था, जैसे हम लोग था, रामायण है, महाभारत है, तो क्या वो सब कंटेंट अब हमें दिखाई देंगे आपके इसके ऊपर? जी, इसमें देखिए थोड़ा सा उसमें एक लीगल इशू है जो कि मैं साफ कर दूं, कि कुछ ऐसे हो सकते हैं प्रोग्राम सीरियल जिनके डिजिटल राइट्स उस समय सोचा नहीं गया था। वो हो सकता है हमें कुछ समय लगे उसको मैनेज करने में, बट अदरवाइज मोस्टली जो वो प्रोग्राम थे, प्लस मिनिस्ट्री की भी जो आर्काइव हैं, जो कि हमारे पास भी ना रहे हो, दूरदर्शन के पास भी ना रहे हो, जो मिनिस्ट्री के आर्काइव्स हैं वो भी हैं, और ऑल इंडिया रेडियो के भी जो आर्काइव्स हैं वो भी इसी पे रहेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जो पहला नाम आपने लिया था हम लोग, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। एक्सक्यूज मी सर, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तत्काल बाद वेव्स डाउनलोड करिए और देखना शुरू करिए। सर आई वांट टू हेलो, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। आप हमें हम लोग से लेकर
शक्तिमान तक तो लेकर जाएंगे, लेकिन अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच में जैसी प्रतिस्पर्धा है और कंटेंट को लेकर जो मारामारी है, ऐसे में कैसे वेव अपनी शुचिता को बना के रखेगा, क्योंकि उसको प्रतिस्पर्धा में भी रहना अनिवार्य होगा। नहीं, देखिए, हमारा जो यूएसपी अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है हमारा, वो वही है, साफ सुथरा पारिवारिक मनोरंजन। हम मनोरंजन की उस भीड़ में नहीं रहना चाहते जिस भीड़ में जो आज समाज के साथ वो भीड़ जो हो रहा है। तो हम तो सामान्य साफ सुथरा पारिवारिक मनोरंजन देंगे, इसीलिए हम सबसे अलग हैं। ये हमारा यूएसपी यही है कि हम क्लीन और एकदम पारिवारिक, आप परिवार के साथ बैठ के वो देख सकते हैं। यही एक हमारा पॉइंट है और यही हमको सबसे अलग करेगा और यही हमको सबसे सफल बनाएगा। तो अभी जो आप बात कर रहे थे, शक्तिमान अभी लोड हो रहा है। अभी शक्तिमान अभी मैंने अभी चेक किया, वो अभी हाँ अभी वो लोड कर रहे हैं अभी, बट आ जाएगा वो। लेकिन आपको हम लोग जैसे बताया अभी दिखेगा, अभी कल डाउनलोड करिए। और दूसरी बात ये फ्री है, इट इज ऑल दीज प्रोग्राम्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम जो कि नए वाले हैं, जो कि प्रीमियम सेक्शंस में है। अदरवाइज मोस्टली इट इज फ्री। यू कैन जस्ट डाउनलोड नाउ, यू जस्ट हैव टू शेयर योर ओटीपी शेयर करेगा, वो एक सिक्योरिटी फीचर है, विच इज नथिंग। वो आपको आप डाउनलोड कर लीजिए, देखते रहिए सब चीजें। So, one more thing I want to. अभी पूछ लेंगे, दूसरे को भी तो पूछ लेंगे। As a part of Prasar Bharati, I want to add one more thing, sir. Of course, we are concentrating to audio visual media, but audio media of Prasar Bharati, that is Akashvani, is also has got a very strong media, and Doordarshan and this media is formed and got the glamour because of Akashvani, which we cannot neglect at any cost. And at a local level, the Akashvani is also doing a very good job, sir, because we are through the News on Air app. Then again, we have a YouTube channel, the Instagram, and the most easy channel, easy way to take the knowledge while driving, while doing work, everything we can do. So I think, sir, as a part of Prasar Bharati, I'm taking an opportunity to request you to concentrate this audio media, which is most old media, which is most prominent media, which has got a very good prestige. And along with these types of great occasions, I think, sir, we should promote this media also, because it goes to the common people and village also. Thank you. See, with each shift in or improvement in technology, there's always been this feeling that a new technology has come in and the previous technology is going to die out. When books started getting printed, they said that storytelling will die out. When radio came, people thought that books will die. When TV came, people said radio will die. None of them has died. Storytelling is alive, books are alive, radio is alive, TV is alive, and now we have digital as well. Within the Prasar Bharati system, we started off with Akashvani. Doordarshan made its presence felt along the way, and in the recent times we have stepped into digital. And as a very conscious, thought-out strategy, all three are equally important for us, and all three will get the attention that they deserve. सर, मेरा एक टेक्निकल सवाल है कि अब जो रिपीट टेलीकास्ट की बात कर रहा है, जो पुराने अपना ये है, मोस्टली शायद वो डीजी बीटा में जीएसपी में शूट हुआ था। तो अभी जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट की आपने बात किया, बिल्कुल सही है। जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, डिजिटाइज्ड जो फॉर्मेट है, तो उसमें कितना रेस्टोरेशन पॉसिबल होगा दोबारा दिखाने के लिए, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, सारे लोग हैं, उनका क्वालिटी है, क्वालिटी से हमें लड़ना है, तो कितना तक हो पाएगा? दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन। और एक शेयर करूंगा सागर साहब से। रामानंद सागर जी का रामायण के बारे में बहुत कुछ कहा गया कि बाथरूम से लोग आ जाते थे, ट्रैफिक जैम हो जाता था। तो मैं बंगाल की एक बहुत ही रिमोट विलेज से आता हूँ जो बांग्लादेश के बॉर्डर में है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था। तो मैंने बचपन में देखा, ज़्यादा बचपन तो नहीं था, देखा कि लोकल पुलिस वो अनाउंसमेंट करते थे कि सब लोग रामायण चलने के समय सतर्क रहिए, अपना जान माल की
रक्षा कीजिए, सिर्फ टीवी में मत रहिए, तो अलर्ट रहिएगा। ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। गौहर जी, मैं आपसे एक सवाल करना। टीवी कम घरों में था, टीवी कम घरों में था, तो लोग अपना छोड़ के घर उधर टीवी देखने जाते थे, इसलिए उनके घर में लूट ना जाए। रेस्टोरेशन के बारे में रेस्टोरेशन के लिए हमारी ऑनगोइंग प्रक्रिया है। हमारे पास रेडियो में तकरीबन 90 साल के आर्काइव्स हैं। हमारे पास दूरदर्शन में लगभग 60 साल से अधिक के आर्काइव्स हैं। और समय के साथ इसमें से अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ऐसे आर्काइव्स भी हैं जो कि रिस्टोर नहीं हो पाए या नष्ट हो गए। लेकिन फिर भी आज की तारीख में हमारे पास तकरीबन 40 से 50 हज़ार घंटे का कंटेंट है जो ऑलरेडी डिजिटाइज्ड है। और जो बचा हुआ आइडेंटिफाइड और इन्वेंटरीड कंटेंट है उसके डिजिटाइजेशन का काम हमारे यहाँ पे लगातार चल रहा है। और इनको हमारी आर्काइव्स की जो वेबसाइट है यूट्यूब वगैरह के ऊपर में उनके लो रेज वर्जन्स तो हमने ऑलरेडी अवेलेबल कराए हैं, लोग उनको देख सकते हैं। और उसमें से कुछ चुनिंदा कंटेंट ऐसा है तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार घंटे का, जिसको हम लोग ऑलरेडी ला करके वेब्स पर भी प्रस्तुत कर दिए। आप देखेंगे इसमें तो पुरानी उदाहरण के तौर पे उसमें जैसे बेगम अख्तर की जो पुरानी गज़लें हैं, जिन्होंने अपना करियर हमारे साथ शुरू किया था, तो बेगम अख्तर के काफ़ी कुछ पुराने गीत हैं जो उनके ठुमरी हैं, जो उनके रिकॉर्डिंग्स हैं। और उस ज़माने से लेकर के फिर आगे आने वाले दिनों तक बहुत सारे जो कलाकार हैं, काफ़ी सारे जो वरिष्ठ कलाकार हैं जिन्होंने अपना करियर दूरदर्शन पे बाल कलाकार के तौर पे शुरू किया था, ऐसे आर्काइव्स भी हमारे पास में हैं। लेकिन ये ज़रूर है, जैसा आपने सही कहा, कि कंपटीशन का भी ज़माना है और जनता कंटेंट को भी दूसरे फॉर्म्स में कंज्यूम कर रही है। तो जहाँ जहाँ आवश्यक होगा उसको हम लोग अपस्केल भी कर सकते हैं, रिमास्टर भी कर सकते हैं, उसको रीपैकेज भी कर सकते हैं। एज टाइम गोज बाय वी विल इवॉल्व दैट स्ट्रेटजी। We will try to bring as varied content and whatever is available. There are, unfortunately, as I mentioned, many of the programs from that time are just not available simply because the tapes have been destroyed. Just to give an example, there was this iconic program called Rajni. प्रिया तेंदुलकर जी का कार्यक्रम था जो दूरदर्शन पे बहुत पॉपुलर था। रजनी जी, उसमें करण जी के साथ हमारी बातचीत हुई, हमने उनके साथ काफ़ी कुछ प्रयास किया। और उसके जो ओरिजिनल टेप्स हैं वो आज किसी के पास उपलब्ध नहीं है। आई मीन ही ऑल्सो डज नॉट हैव देम एंड ही हैड नॉट गिवन द राइट्स टू एनीबॉडी, लेकिन वो टेप्स बच नहीं पाए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब वो उस तरह का कंटेंट है जो कि हम सबको याद है, लेकिन अब हम चाह के भी उसको दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो वी आर डूइंग द नेक्स्ट बेस्ट थिंग कि हमने उनके साथ में बातचीत करी है कि वो उसका एक नया वर्जन, कंटेम्प्रेरी वर्जन बनाए। उन्होंने उसके ऊपर में भी काम शुरू करने की बात की है एंड होपफुली वो नए कार्यक्रम भी बन करके जल्दी हमारे पास में आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग केवल पुराने कार्यक्रमों को रिक्रिएट करके ला रहे हैं, और भी चीज़ें हैं। जैसे हमारे साइबर क्राइम के ऊपर हमने एक नई सीरीज शुरू की है कुछ दिन पहले, और तो साइबर अलर्ट के कार्यक्रम हैं जिसमें लोगों को थोड़ा बहुत ड्रामेटाइज्ड भी रहेगा। लेकिन आज के ज़माने में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों को डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं और उस तरीके की चीज़ें हैं, एवरीबडी इज़ फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स दीस डेज, तो वो सब कार्यक्रम भी हम बना करके ला रहे हैं। तो इट्स अ गुड हेल्दी मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, ऑल ऑफ इट। और बाकी जो हमारी ऑडियंस डिमांड करेगी उस तरह के नए नए कार्यक्रम हम लोग बना करके लाते हैं। Last two questions. Yeah. मेरा सवाल संदीप जी से है। मैं स्वदेश चैनल से हूँ। संदीप जी, मुझे ये जानना है, जैसे आपने मैराथन जैसी पिक्चरें बनाई हैं और जो आप फौजी 2 लेके आए, ये सारे थॉट आपको कहाँ से आते हैं सर? मेरे कंपनी का नाम लेजेंड स्टूडियो है। तो मैं बिहार से हूँ और मैं पहले आइसक्रीम बेचता था। तो बहुत मुश्किल हुआ मुझे कि धीरे धीरे मुझे इंडस्ट्री समझने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं थे कि मैं विस्लिंग बोर्ड या कहीं ज्वाइन कर पाऊँ। तो मैं बहुत जगह गया असिस्टेंट बनने के लिए, और तो कहीं तो काम मिला नहीं। सब बोलते थे हाँ तुम अच्छे लड़के हो, तो लेकिन आगे बढ़ने का मौका तो मिल ही नहीं सकता था। तो मैं जर्नलिस्ट बन गया आपकी तरह, और फिर सिर्फ फिल्म पे कॉन्सेंट्रेट करता था। जहाँ शूटिंग चलती थी, एक्टरों से मिलना, प्रोड्यूसर से मिलना, डायरेक्टर से मिलना, उनकी ज़िंदगी को समझ के
उसको मैंने बेस्ट चीज़ों को अपना लिया और फिर क्या करना और क्या नहीं करना है उस पर ध्यान दिया। उसके बाद मुझे ये लगा कि कितने लोग आज इफ़ी में यही मौका तो मिलता है ना कि लोगों को जिनकी फिल्में थिएटर नहीं पहुंच पाती, जिनकी फिल्में बन नहीं पाती, वो लोग मैक्सिमम यहाँ दिखते हैं और उनकी फिल्मों को कुछ ना कुछ राह दिख जाता है। तो उसी तरीके से उन फिल्मों को जैसे जो फिल्में कहानी सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते। आज मुझे याद है कि मैं 2 फिल्में बेचने गया था एक साथ, गब्बर और मैरी कॉम, और मुझे कहा गया कि हम गब्बर ले सकते हैं पर मैरी कॉम नहीं, क्योंकि इसमें लड़की ना नाच रही है, ना अच्छी दिख रही है, दांत में ब्रेसेस लगा रही है। तो मैं बोला सर एक काम कीजिएगा, मैं ये फिल्म आपको 12 करोड़ रुपए में बना के दे देता हूँ। और वो फिल्म एक्चुअली में प्रियंका चोपड़ा ने उस फिल्म में फीस नहीं लिया था, ये बात आज मैं कह रहा हूँ, और वो फिल्म 12 करोड़ रुपए में बन के दे दिया था हमने, और वो फिल्म का बिजनेस 100 करोड़ के ऊपर हुआ था उस समय। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कहानी सुनते हैं वो कभी कहानी बनाते नहीं है, और जो कहानी बनाते हैं वो बेचारे पैसे नहीं होते उनके पास। तो मैंने यही सोचा कि मैं जब अपनी कंपनी खोलूंगा तो मैं ऐसी फिल्में बनाऊंगा जिनकी कहानियों को लोग सुनने को भी रेडी नहीं होते। इसलिए सावरकर है, अटल है, पीएम नरेंद्र मोदी है, अलीगढ़ मैंने शुरुआत किया था सबसे पहला। सो दैट्स ऑल। सो आई कीप थिंकिंग डिफरेंटली which somehow I am just leading there somewhere. Thank you. गौहर जी एक हमारा क्वेश्चन है आपसे अलग से बात करेंगे, मेरे पास 2 हाथ वहां हैं, 1 मिनट जी। हर्षदा क्विकली। Yes. हाय, मेरा नाम हर्षिता वेद पाठक है और मैं स्क्रीन ग्राफिया से हूँ। मुझे सिर्फ एक बात जाननी थी कि कॉपीराइट के बारे में कुछ बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रजनी, हम लोग या शक्तिमान जैसी सीरियल वापस से अपने प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं तो, या तो रामायण जैसे, तो उसका कॉपीराइट किसके पास होगा एक, और अगर कोई दूसरा चैनल, आपके राइवल चैनल पे कोई प्रोग्राम एयर हो रहा होगा तो आपके वहाँ वो एयर हो सकता है, उसके कॉपीराइट इशू, और कोई फ्रेश बना रहा है सीरियल आपके लिए खास तौर पे, तो उसका कॉपीराइट हक किसके पास होगा? Copyright issue is not terribly complicated. The programs that were commissioned by Doordarshan or are being commissioned by Doordarshan, the rights rest with Doordarshan. जो कार्यक्रम बाहर के जो हमारे पार्टनर्स थे जिन्होंने बना करके कार्यक्रम हमको दिए और स्पॉन्सर्ड स्लॉट्स में लिए, तो उनको हमने एज ए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलाया, लेकिन उनके राइट्स उन्हीं के पास रहे। जैसे कि अभी मूल जो 80s की रामायण थी जिसका उल्लेख शिव जी ने अभी किया, तो उनके राइट्स आज भी जो है इनके परिवार के पास में है, और जब जब उस कार्यक्रम को हमें चलाना होता है या किसी और को चलाना होता है तो इनकी अनुमति लेकर के और कॉपीराइट्स के परमिशंस के हिसाब से हम उस कार्यक्रम को चलाते हैं। और कई बार ऐसा रहता है कि राइट्स जो है वो नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे भी शेयर किए जाते हैं। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक ही कार्यक्रम जो है वो एक से अधिक माध्यमों पे, चैनल्स पर जो है एक साथ भी चल रहा हो। तो वो कॉपीराइट्स को लेकर के 80s 90s में जो है उतनी ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में जब नए कॉपीराइट एक्ट वगैरह आने के बाद से जो है काफ़ी क्लैरिटी इस बारे में हो गई है। और जहाँ पे अगर हमें कोई पुराना कार्यक्रम दोबारा लेकर के आना है जिसके राइट्स हमारे पास नहीं है, तो बाकायदा उनके राइट्स ले करके फिर वो कार्यक्रम चलाते हैं। यदि वो कार्यक्रम दोबारा अगर हमको रिक्रिएट करना है तो जिन लोगों के पास में उनके नेम या राइट्स दूसरे हैं तो उनको या तो साथ लेकर के या उनकी इजाज़त के साथ में पूरी लीगल प्रक्रिया के साथ ही कार्रवाई की जाती है। नमस्ते सर। Gauhar has to leave because she has a flight and I would like you to ask her the last question so that she can leave. So sorry about that. Just that. गौहर जी, ये जो फौजी 2 आ रहा है, इसमें आप क्या मेजर कमांडर जो भी आपने किरदार निभाया है लेफ्टिनेंट का, तो आपने कितना होमवर्क किया? क्योंकि आर्मी वाले तो बहुत डिसिप्लिन में होते हैं, बहुत अनुशासित होते हैं, आपने कहाँ से कुछ ट्रेनिंग ली, कुछ समझा उसके बारे में, तब इस किरदार को चुना? मैम, अनुशासन और स्ट्रिक्टनेस तो मेरे बचपन से ही मेरे खून में है। तो मुझे संदीप सर बुलाते ही प्रिंसिपल हैं जब से वो मुझे जानते हैं, बट ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। लेकिन जितना भी रिसर्च हमारे स्क्रिप्ट लेवल पे हुआ है वो सब हमने साथ में वर्कशॉप में काम किया है उस पर। एंड भले ही आप यूनिफॉर्म को ले लें, बैचेस जो हमने पहने, हमने बहुत कोशिश की है कि हम हद से ज्यादा उसके प्रति जो इज्जत है उस यूनिफॉर्म के साथ, यहाँ तक कि बेल्ट ऑफ सेंटर भी नहीं रह सकता कोई शॉट में, वो भी हमें
हर टेक के बीच में हमें करेक्ट किया जाता है, लड़कों को हमें साथ साथ. तो आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट. और जितना भी रिसर्च हो रहा है हम कोशिश यही कर रहे हैं कि we should not offend anybody, especially the armed forces, and we are making obviously an entertainment show, and audience को बस वो पसंद आना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं माफी चाहूंगी, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी फ्लाइट है, and I'm really really late. So sorry sir. Thank you so much for the opportunity. I love you all, and Jai Hind. Thank you so much. Sorry, I'm going to take a leave. This is the last question. बस नहीं तो ये वार्ता चलती रहेगी. सर मेरा नाम प्रीतीश बागड़ी है. मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे आपने कहा कि प्रसार वेव्स का मेन मोटो है कि पारिवारिक कार्यक्रम सब तक पहुंचा जाए. आजकल के जो यंग क्रिएटर्स है जो ईपी में भी अपने फिल्म्स दिखा रहे हैं, वो इस तरह की फिल्में बना रहे हैं जो एक अलग सा मैसेज है जो परिवार तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो पारिवारिक संबंधों पे हो या फाइनेंस पे हो या टेक्नोलॉजी के ऊपर हो. हर तरह की इंफॉर्मेशन आज फिल्म और पॉडकास्ट के माध्यम से परिवार तक पहुंचनी चाहिए. क्या उनको वेव्स पे जगह मिलेगी अपना प्रोग्राम, अपना कंटेंट अपलोड करने की? बहुत अच्छा सवाल है आपका. और कि दूरदर्शन में अभी हम एक योजना पर काम कर रहे हैं जिसमें कि जो यंग क्रिएटर्स हैं जिनको कि यहाँ ईफी में भी पिछले 3 वर्षों में सम्मानित किया गया है, और अभी कल भी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान चालू है. एक तो वो जो यंग क्रिएटर्स हैं जो आइडेंटिफाइड क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो वाले हैं, उन लोगों के साथ में मिल करके हम लोग जो है कार्यक्रम बनाने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी. दूसरा, उसके अलावा चूंकि बहुत बड़ी संख्या में अब बच्चे क्रिएटिव परसूट्स में जा रहे हैं, तो उनके लिए हम अभी अगले कुछ दिन में ही हम लोग कुछ कॉन्टेस्ट और चैलेंजेस लॉन्च करेंगे जिसमें हम उनकी तरफ से एंट्रीज इनवाइट करेंगे. वो किसी भी विषय पर हो सकते हैं, चाहे वो उसको फिक्शन या नॉन फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री किसी भी फॉर्मेट में बनाना चाहते हो. वो डिटेल्स हम लोग कुछ दिन में अपनी वेबसाइट के ऊपर में लाइव करेंगे, और उसके माध्यम से हम इन उभरते कलाकारों को भी मौका देंगे कि अपना जो टैलेंट है उसको ला करके दूरदर्शन, प्रसार भारती, आकाशवाणी, वेव्स सभी माध्यम से वो जनता तक ला सके. आपने सवाल पूछा था उससे रिलेटेड ही है. जैसे भी आपने बताया, we'll work on that and create some sort of a window for all these young creators and the documentary things that a lot of people are producing on their own. I got your point. Thank you so much. It was a very lively, very informative press conference. Can I ask the cast and crew to just gather here with you for a small photo opportunity? Thank you, everybody. आइए नीचे आ नीचे आ जाइए, तो then people can just take one.